تاکہ تیرے نام کو جلال ملے۔ اے خداوند خدا، میں تیرا خادم ہوتے ہوئے ساری کلیسیا کے ساتھ متفق ہو کر تیرے خادم پر تیری برکت چاہتے ہیں، جس کے منہ میں تو نے آج اپنے زندگی بخش کلام کو رکھا ہے۔ اے خداوند، ہر ایک لفظ تیری طرف سے ناپا تولا آگ میں تپایا ہوا ہو۔ اے خداوند، جب تیرا خادم تیری دی ہوئی ترتیب کے ساتھ بولے تو خداوند تو اس میں ہو کر بولنا۔ آج جتنے لوگ تیرے منہ کی میٹھی شیریں باتوں کو سنے تو خداوندوں کے خدا تجھ میں اور بڑھے، روحانی زندگی میں بڑھ جائیں، اور آج بتھیری زندگیاں تیری بادشاہی کے لیے تیار ہو جائیں۔ جتنی دیر تیرا خادم، تیرا منصوح تیرے مذبح پر کھڑا رہے، تیرا پاک روح ایک لمحہ بھی تیرے خادم سے اور اس پنڈال سے، اس علاقہ سے جدا نہ ہو، تیری حضوری ٹھہری رہے۔ اے خداوند خدا، ایک لمحہ بھی جدا نہ ہو، اور خداوندوں کے خدا جلال عزت آج تیرے نام کو ملے، مسیح یسوع کے پاک نام سے، آمین 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 آمین۔ ہم خدا کے خادم اور خدا کے کلام کی تعظیم کے لیے اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں گے۔ سب اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں گے، کوئی بھی بیٹھا نہ رہے، ماں بہنیں بھی، بھائی بھی، اور کھڑے کھڑے ہم ایک ایک قدم مذبح کی طرف بڑھائیں گے۔ بہنوں سے گزارش ہے، بڑی ہی ایمانداری سے ہم ایک ایک قدم مذبح کی طرف بڑھائیں گے۔ بہنوں سے گزارش آگے آ جائے، تاکہ دوران کلام جو بہنیں آئیں وہ پیچھے بیٹھ سکیں۔ برائے مہربانی ایک ایک قدم مذبح کی طرف بڑھائیں۔ پیچھے ابھی بھی بہنیں پیچھے کھڑی ہیں، درمیان میں جگہ ہے۔ جو بہنیں پیچھے ہیں وہ آگے آ جائیں، اور بھائیوں سے بھی گزارش ہے کہ ایل سی ڈی کی طرف بیٹھنا ہے، تاکہ بھائی جو ہیں وہ ترتیب سے جو بعد میں آئیں وہ بیٹھ سکیں۔ سو آپ کی بھرپور تالیوں میں میں خدا کے خادم پاسٹر شکیل صاحب کو دعوت دوں گا، وہ آئیں گے اور خدا کے کلام کو سنائیں۔ بیٹھیے گا، خدا آپ کو برکت دے۔ آمین۔ آمین۔ گزارش ہے بھائیوں سے جو نیچے بیٹھ سکتے ہیں، نوجوان جو ہیں وہ آپ نیچے بیٹھیں، تاکہ جو بزرگوں کے لیے چیئرز رکھی گئی ہیں، جو بزرگ ہیں ان کو بیٹھنے کے لیے آپ جگہ ضرور دیں۔ جیسے کوئی بزرگ آئے آپ ان کے لیے چیئرز کو چھوڑ دیں، تاکہ بزرگ جو ہیں وہ آسانی کے ساتھ بیٹھ کر عبادت کر سکیں۔ شکریہ جی، اور خدا آپ کو بہت برکت دے۔ مسیح یسوع کے زندہ جلالی اور ببرکت نام میں اس قادر مطلق خدا صلح اور سلامتی کے شہزادے کی سلامتی آج صبح آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔ مسیح میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اس سال کے دوسرے مہینہ میں آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں، اور آج دوسرے ماہ کا یہ پہلا
इतवार और आज हम खुदावंद की मेज लगाएंगे और उन सब ईमानदारों के लिए ये मौका है कि आप इस पाक मेज पर अपना हाथ डालें और खुदावंद की बख्शिश को, खुदावंद की सलामती को अपनी जिंदगी में लें। आमीन आमीन। और मैं खुदा का खादम होते हुए आप सबको आज इस इबादत में वेलकम करता हूं और खुदा आपको आज इस इबादत के जरिया से बहुत सारी बरकतों से नवाजे और आपके खानदानों में, आपके घरानों में किसी बात की कमी ना रहे। आमीन। सो अजीजों, सीखें और सीख कर याद रखें और याद रखकर इन बातों पर अमल करने की कोशिश करें, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। आमीन। आप जो मुश्किलों में हैं, खानदानी तौर पर तरह तरह से आप परेशानियों में हैं, आप हर इतवार खुदा के हुजूर आते हैं मशवरा लेने। क्या करने जी? क्या करने? इस लफ्ज पर आपने बार बार सोचना है कि आप जब अपने घर से कहीं भी इबादत के लिए निकलते हो, कहीं भी इबादत करते हो, तो जब खुदा का कलाम सुनाया जाता है वो आपके लिए मशवरा है। और आप आज भी खुदा के हुजूर मशवरा लेने आए हैं कि मैं क्या करूं। मुश्किलें बड़ी हैं, परेशानियां बहुत हैं, मुसीबतें बहुत ज्यादा हैं। मैं क्या करूं कि इस मुश्किल से निकल सकूं? मैं क्या करूं इस परेशानी से निकल सकूं? मैं क्या करूं इस दुख, इस मुसीबत से रहाई पा सकूं? आमीन। हम सब इसीलिए आए हैं, मैं भी और आप सब भी खुदा के हुजूर इसलिए आए हैं कि हम खुदा से कुछ पूछें, है ना। आपने थोड़ी देर पहले जो दुआ की है ना, वो अपने खुदा से पूछा है, अपने खुदा से बात की है। आपने कहा है कि खुदा, मैं इस मुश्किल में हूं, मैं इस परेशानी में हूं, मैं इस दुख में हूं, मैं इस मुसीबत में हूं, मैं क्या करूं? ऐसे है जी। कितनों ने खुदा से बात की? आमीन। और फिर खुदा के खादम लास्ट में जो गीत गा रहे थे ना, बड़ा बाबरकत। मूसा लई बनाया जिन्हें आनियां चुरा, मेरे लिए पहाड़ा नू। तो फिर हम ये गाने तक कि महदूद हैं, भरोसा नहीं है हमें। वो खुदा जो मूसा के लिए, मूसा के लोगों के लिए बहरे कुलज़म को 2 हिस्सों में कर देता है, शायर कहता है कि वो मेरे लिए पहाड़ों को भी हटाना जानता है। आमीन। आज इस सुबह में आप अपनी जिंदगी में तरह तरह से पहाड़ लेकर आए हैं। वो ज़रूरियात के पहाड़ है, वो बीमारी का पहाड़ है, वो मुश्किलात के पहाड़ है। और आप इस बात पर भरोसा रखिएगा कि जो खुदा मूसा और उसके लोगों के लिए पानी में से रास्ता बना सकता है, वो खुदा आपके लिए पहाड़ों को हटाना जानता है। आमीन। भरोसा रखिएगा। मैं खुदा का खादम होते हुए आज आपको तसल्ली और इत्मीनान से नवाजता हूं कि आपका खुदा सब कुछ देख रहा है, वो बेखबर नहीं है आपके लिए। हां, जरूरत इस बात की है कि हम खुदा की कही हुई बात पर अमल करने वाले बने। आमीन। और उसमें खुदा ने हमें इस साल जो आयात दी हैं, याकूब का खत उसका पहला बाब
उसकी 22वीं आयत से 25वीं आयत तक हम खुदा के कलाम को देखेंगे। हमारे लिए सुनहरी आयात हैं। याकूब का खत और उसका पहला बाब और पहले बाब की 22वीं आयत से हमारे लिए आयात ने लिखा है, लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई कलाम का सुनने वाला हो और उस पर अमल करने वाला ना हो, वो शख्स की मानिंद है जो अपनी कुदरती सूरत आईना में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता और फौरन भूल जाता है कि मैं कैसा था। लेकिन जो शख्स आजादी की कामल शरीयत पर गौर से नजर करता रहता है, वो अपने काम में इसलिए बरकत पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं बल्कि अमल करता है। आमीन। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बायस बरकत हो। आमीन। जो सुना जी आमीन। यकीनन खुदा का शुक्र हो इस बात के लिए कि खुदा हमसे बात कर रहा है। आमीन। और इन आयात में वाज़िह तौर पर यह बात है कि कलाम पर अमल करने वाले बनो। आमीन। लिखा है कि जो कलाम पर अमल करता है वो बरकत पाएगा। और किस लिए बरकत पाएगा? कि वो भूलता नहीं है। वो भूलता नहीं है। आमीन। वो इसलिए बरकत पाएगा कि वो भूलता नहीं है। और महज सुनने वाले ना बनो। और हम सालों से सुन रहे हैं कि खुदावन मुझसे और आपसे ये कहता है कि तुम्हारा दिल ना घबराए, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ना घबराना, यकीन भरोसा रखो, खुदावन है। और इसलिए इन आयात में वाज़िह तौर पर इसको बयान किया गया कि महज कलाम को सुनने वाले ना बनो, क्योंकि जो महज सुनने वाले हैं और अमल करने वाले नहीं हैं, वो अपने आप को धोखा देते हैं। वो क्या करते हैं? अपने आप को धोखा दे रहे हैं कि हां जी, जितना मुझे खुदा के कलाम के बारे में पता है किसी और को तो पता ही नहीं है। वो महज खुद को धोखा दे रहे हैं। अजीजों, इस बात को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ कि जो हम सुन रहे हैं, जो खुदा हमसे बात कर रहा है, जरूरी है कि हम इस पर अमल करने वाले बने। मेरा इस साल इस बात पर ज्यादा फोकस है और मैं चाहता हूं कि हमारा चर्च अमल करने वाला चर्च हो, ना महज सुनने वाला। जो सुनने वाले हैं वो अपने आप को धोखा देते हैं। हम बड़े बड़े सेमिनार्स तो अटेंड करते हैं, हम कोशिश करके बाइबल स्कूल तक भी जाते हैं, बाइबल कॉलेज तक जाते हैं, हम पढ़ते हैं और तरह बतरह से कलाम को सीखते हैं, लेकिन अमल करने से कासर है। हम बड़ी बड़ी डिग्रियां तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन अमल करने से कासर है। हमने कलाम के वेदों से अच्छी वाकफियत तो ले ली, लेकिन अमल करने से कासर है। ये खुदा का कलाम मुझसे और आपसे सख्त अल्फाज में बात कर रहा है और कह रहा है कि अपने आप को धोखा ना दो। महज सुनने वाला जो है वो अपने आप को धोखा दे रहा है। और वो कैसा है कि एक शख्स आईना में अपनी कुदरती सूरत देखता और चला जाता है और फिर क्या भूल जाता है। वो शख्स ऐसा है जो कलाम को सुन रहा है, कलाम के भेदों को सुन रहा है और अमल नहीं कर रहा। अजीजों, याद रखिएगा, खुदा के कलाम के मुताबिक पहली बात तो वो अपने आप को धोखा दे रहा है, दूसरी बात वो अपनी कुदरती सूरत भूल चुका हुआ है। आता है, देखता है और अपनी थोड़ी देर बाद अपनी सूरत को भूल जाता है।
اور جو شخص کلام پر عمل کرنے والا ہے وہ اس لیے برکت پائے گا کیونکہ وہ بھولتا نہیں ہے. آمین. اور ہم نے بھولنا نہیں ہے. جو آج ہم نے سیکھنا ہے اس کو ہم نے بھولنا نہیں ہے. اسی بات کو مزید بڑھاتے ہوئے خدا کے کلام کے مطابق جب ہم اس کو لوکا طبیب کی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان میں دیکھتے ہیں تو خدا کا بندہ اس بات کو مزید ہمارے لیے واضح کر رہا ہے. یہ بات مزید ہمارے لیے آسان کر رہا ہے. جب ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں تو یہ بات مزید ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہے. لکھا ہے لوکا طبیب کی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان اس کے 6 باب کی 46ویں آیت سے 49ویں آیت تک جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ جب تم میرے کہنے پر, نکالیے گا کتاب مقدس میں سے, جب تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے تو کیوں مجھے خداوند خداوند کہتے ہو. جو کہ میرے پاس آتا اور میری باتیں سن کر ان پر عمل کرتا ہے میں تمہیں جتاتا ہوں کہ وہ کس کی مانند ہے. وہ اس آدمی کی مانند ہے جس نے گھر بناتے وقت زمین گہری کھود کر چٹان پر بنیاد ڈالی. جب طوفان آیا اور سیلاب اس گھر سے ٹکرایا تو اسے ہلا نہ سکا کیونکہ وہ مضبوط بنا ہوا تھا. لیکن جو سن کر عمل میں نہیں لاتا وہ اس کی مانند ہے جس نے زمین پر گھر کو بے بنیاد بنایا. جب سیلاب اس پر زور سے آیا تو پھر گر پڑا اور وہ گھر بالکل برباد ہوا. یہ تمثیل ہے. گھر سے مراد میں اور آپ ہیں. یہ گھر میں اور آپ ہیں. جب اس گھر سے مشکلات کے طوفان, پریشانیوں کے طوفان, بیماری کا سیلاب جب اس گھر سے ٹکرایا, لکھا ہے کہ جو سن کر عمل نہیں کرتا وہ گھر بالکل برباد ہوا. چارپائی پر آ گیا, بیڈ پر لیٹ گیا, کوئی امید نہیں ہے. ڈاکٹر نے بھی جواب دے دیا, لا علاج مرض نے آ گھیر لیا, ایسی پریشانیوں نے گھیر لیا. یہ گھر بالکل برباد ہوا کیونکہ اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. جو سن کر عمل میں نہیں لاتا اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے, وہ بے بنیاد ہے. اور جب ہم اس کو متی رسول کی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان میں دیکھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے اس نے ریت پر اپنی بنیاد رکھی. اور جو سن کر عمل کرتا ہے خداوند کہتے ہیں میں تمہیں جتاتا ہوں. یہ خداوند یسوع مسیح کی زبان مبارکہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. یہ تمثیل بھی انہوں نے اپنی زبان سے ارشاد فرمائی اور کہا, مجھ سے اور آپ سے کہا, اس دور کے لوگوں سے کہا کہ جب تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے تو پھر کیوں مجھے خداوند خداوند کہتے ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ جب کہنے پر عمل نہیں ہے تو پھر اتوار کی عبادت اٹینڈ کرنے کا کیا فائدہ؟ بدھ کی عبادت اٹینڈ کرنے کا کیا فائدہ؟ کیا فائدہ تمہارے روزوں کا؟ کیا فائدہ تمہاری بندگی کا؟ کیا فائدہ گھنٹوں گھنٹے عبادت میں بیٹھے رہنے کا؟ کیا فائدہ وہ اونچی اونچی دعائیں کرنے کا؟ کیا فائدہ وہ 2 گھنٹے کلام کو سننے کا جب کہنے پر عمل نہیں کرتے تو پھر کیوں مجھے خداوند خداوند کہتے ہو؟ اور یعقوب اس بات کو جب بیان کر رہا ہے وہ یہی بات اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہے کہ محض سننے والے نہ بنو. سننے والے جو ہیں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کیونکہ آقا نے خداوند یسوع نے یہ بات کہہ دی ہوئی ہے کہ اگر عمل نہیں کرو گے تو پھر آپ کی بنیاد ریت پر ہے, اور اگر عمل نہیں کرو گے تو یہ مشکلات کے طوفان, پریشانیوں کے طوفان, مصیبتوں کے سیلاب جب اس گھر سے ٹکرائیں گے تو یہ گھر بالکل برباد ہوگا. اور جس کی بنیاد جو چٹان پر ہوگی, آپ چٹان کیا ہے؟ خدا کا کلام. اور عمل کرنے والا جو شخص ہے وہ اپنی بنیاد چٹان پر رکھ رہا ہے. اور جس کی بنیاد چٹان پر ہے, جس کو یہ بات معلوم ہے کہ میرا رب جو ہے وہ کسی حالت میں بھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا. میں بیمار ہوں, پریشان ہوں, دکھ میں ہوں, مصیبت میں ہوں تو میرا خدا مجھے نہیں چھوڑے گا, وہ میرے ساتھ ہوگا. آمین. میرا خدا میرے ساتھ ہوگا. مشکل آئی ہے کوئی بات نہیں, پریشانی آئی ہے کوئی بات نہیں, مصیبت آئی ہے کوئی بات نہیں, بیماری آئی ہے کوئی بات نہیں, میرا خدا میرے ساتھ ہے. ہاللیلویا. اس لیے میرے عزیزو, اگر آپ کی بنیاد خدا کے کلام پر ہوگی تو آپ مضبوط ہوں گے, اور اس قدر مضبوط ہوں گے کہ پھر آپ کو مشکل ہلا نہیں پائے گی, پریشانی ہلا نہیں پائے گی,
मुसीबत आपको हिला नहीं पाएगी, क्योंकि आपकी बुनियाद मजबूत है। हालेलुया, आपकी बुनियाद मजबूत है। कोई आपको धोखा नहीं दे सकेगा, कोई आपको परेशान नहीं कर सकेगा, क्योंकि आपकी बुनियाद यीशु है। और जिनकी बुनियाद यीशु है वो लोग अपनी अपनी जिंदगी में महफूज हैं, क्योंकि उनकी बुनियाद यीशु है। आमीन। अजीजों, कोशिश करें कि अपनी बुनियाद यीशु में रखें। और यीशु में बुनियाद रखने के लिए जरूरी है कि आप यीशु से जब मशवरा लेते हो ना, जब खुदावंद से मशवरा लेते हो, आप मशवरा कैसे लेते हैं? आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि जब आप मशवरा लेते हो तो फिर अमल भी करो, जब आप कलाम सुनते हो तो फिर अमल भी करो, और जब अमल करोगे तो आप सरफराज होंगे। खुदा आपको सर बुलंद करेगा, क्योंकि आपने मशवरा लिया, फिर उस पर अमल किया। आमीन। गौर करें इस बात पर, ध्यान करें इस बात पर। और मेरे अज़ीज़ों, ये बात वासिया मेरे लिए और आपके लिए है कि जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो क्यों, मेरे लिए और आपके लिए सवाल निशान है। फिर क्यों आ जाते हो हर इतवार? फिर क्यों आ जाते हो हर बुध? फिर क्यों घर में दरी बिछा लेते हो? फिर क्यों ये रोना पिटना डाला हुआ है कि खुदावंद सुनता नहीं है? सुने वो कैसे? आप नहीं सुनते, वो भी नहीं सुनता। आप सुनो, अमल करो, तो फिर वो भी सुनेगा और आपकी जिंदगी में अमली तौर पर होगा। जब आप फर्जी हैं खुदा के साथ, सुनिए जरा ध्यान से सुनिएगा, गिव एंड टेक है ये, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अजीजों, ये गिव एंड टेक है। जिस तरह आप खुदा के साथ फर्जी हो, रस्मी हो, उसी तरह आपका खुदा भी आपके साथ फर्जी और रस्मी है। इसलिए आपकी दुआ नहीं सुनी जा रही, इसलिए आप अपनी मुतलका बरकत से बहुत दूर हो, क्योंकि आप खुदा के साथ रस्मी हो। आप दिल से खुदा के साथ नहीं हो, आप बुनियादी तौर पर खुदा के साथ नहीं हो, आप अमल करने वाले ईमानदार नहीं हो, आप फर्जी ईमानदार हो कि हफ्ता में एक दिन चर्च जाना है, खुदा के हुजूर दुआ करना है, ये मुझ पे फर्ज है, क्योंकि सारी दुनिया ऐसा कर रही है, मैं भी ऐसा ही करूंगा या करूंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे लोगों के साथ खुदा भला नहीं है, ऐसे लोगों के साथ खुदा खड़ा नहीं होता। ये मुश्किलों में, परेशानियों में हमेशा रहते हैं। और जो लोग खुदा के कलाम पर ध्यान से गौर करके अमल करते हैं, खुदा उनके साथ भी गौर से गौर करके अमली तौर पर खड़ा होता है, क्योंकि वो अमल करने वाला ईमानदार है। आमीन आमीन। फिर उसके घर में मौजूदा होता है। याद रखिएगा कि खुदावंद के कलाम पर अमल करने वाले बनो, क्योंकि कलाम पर अमल करने वाला ही रास्तबाज ठहरता है। आमीन। और जब तारीख को देखते हैं, अपने आबा अजदाद को देखते हैं, जब हम अपने बाप इब्राहिम को देखते हैं, उनकी मिसालों को लेते हैं, तो जरूरी है कि हम उन्हीं की तरह अपनी जिंदगी को ढाल लें। जब हम अपने आका, अपने खुदा यीशु मसीह को देखते हैं, तो उनके लिए भी लिखा गया कि वो फर्माबरदार रहा। उसने वही किया जो बाप ने उसको करने के लिए दिया, और बोला, अमल किया। आमीन आमीन। और मेरे आका, मेरे खुदा यीशु मसीह मुझसे और आपसे फरमाते हैं कि जिस तरह मैं गालिब आया, तुम भी गालिब आओ। मेरे अज़ीज़ों, इस बात पर गौर कीजिएगा, ध्यान कीजिएगा, क्योंकि खुदा का कलाम हमें सिखा रहा है, खुदा का कलाम हमारी कांट छांट कर रहा है। और आज अगर आप खुदावंद से मशवरा लेने आए हो और इस बात के लिए खुदावंद के पास आए हो, और जब खुदावंद आपको मशवरा दे तो उस पर अमल कीजिएगा। आइए देखते हैं, खुदा के कलाम पर ध्यान करते हैं, तवज्जो करते हैं। जो मशवरा पर अमल करते हैं, खुदा उनके साथ भला है। आए मेरे साथ देखिएगा, दूसरा सलातीन उसका चौथा बाप और पहली 7 आयत। दूसरा सलातीन उसका चौथा बाप और चौथे बाप की पहली 7 आयत। एक वाक्य है, आप अपनी अपनी बाइबल मुकद्दस पर इसको खोलिएगा, और इस वाक्य के जरिया से हम सीखेंगे कि जब आप खुदा से मशवरा करते हो
तो फिर पूरा पूरा उस पर अमल भी करो। आमीन। आज खानदानी तौर पर, घरानों के तौर पर हमारे खानदानों में बदहाली है, हमारे खानदानों में कर्ज की लानत है, क्योंकि खुदा हमारे साथ भला नहीं है, क्योंकि हम खुदा के हजूर फर्जी तौर पर हैं और रस्मी तौर पर हैं। आप दिल से खुदा के हजूर नहीं हो, आपकी बुनियाद रेत पर है। अगर आप खुदा के कलाम को सुनकर उस पर अमल करने वाले हैं तो अजीजो याद रखिएगा, खुदा आपके घर में मौजज़ा करेगा। आमीन। खुदा आपकी जिंदगी में मौजज़ा करेगा, खुदा आपके बच्चों की जिंदगी में मौजज़ा करेगा। उसके लिए जरूरी है खुदा के कलाम पर अमल करना। यहां लिखा है कि अंबियाजादों की बीवियों में से एक औरत अलीशा के पास आती है, और जब वो अलीशा के पास आती है और फरियाद करती है और कहती है कि तेरा खादम, मेरा शौहर मर गया है, यानी वो बेवा है, और लिखा है कि उसके सर पर, उसके खानदान पर, उसके बच्चों के सर पर बेतहाशा कर्ज है और वह कर्ज की लानत में मुब्तला है, यानी परेशान है, यानी एक तूफान जिंदगी में उठा है, मुसीबत का एक सैलाब उनकी जिंदगी में आ चुका है। और वो अलीशा के पास आती है, अलीशा नबी के पास आती है, मर्द खुदा के पास आती है और इस बात का हल चाहती है और फरियाद करती है कि कर्ज खा आया है, यानी कर्ज लेने वाला आया है, और कहता है कि अगर तूने कर्ज अदा ना किया तो मैं तेरे दोनों बेटों को गुलाम बना लूंगा, यानी वो मेरे यहां काम करेंगे लेकिन उसका पैसा तुझे नहीं मिलेगा जब तक मैं अपना कर्ज वसूल ना कर लूं। अब मां है और मां का दिल अपने बच्चों के लिए हमेशा परेशान रहता है, वो मां मूसा की हो या वो यस्सु की हो, मेरी हो या आपकी हो। मां हमेशा अपने बच्चों के लिए कंफर्टेबल जोन ही चाहती है। वो चाहती है कि मेरे बच्चे जो हैं वो हमेशा आराम में रहें, सुकून में रहें, सलामती में रहें, बहाल रहें, खुशहाल रहें। लेकिन इस मां पर आज हम देखते हैं कि एक बड़ा मुश्किल का पहाड़ जो है, परेशानी का तूफान जो है, मुसीबत का सैलाब जो है वो उसकी जिंदगी में आ चुका है और वो मर्द खुदा के पास आ गई है। आपकी तरह, जिस तरह आप आज खुदा के हुजूर आए हो मुख्तलिफ परेशानियां लेकर, मुख्तलिफ मुसीबतें लेकर, मुख्तलिफ दुआएं लेकर, जो आप खुदा के हुजूर करने आए हो, खुदा से मांगने आए हो, मशवरा लेने आए हो। ये भी बहन अलीशा के पास गई, मर्द खुदा के पास गई और कहने लगी, अब बता मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, घर में कुछ नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है, बच्चे हैं, घर में फाके हैं, रोटी पकाने के लिए कुछ नहीं है, अब मैं क्या करूं, कैसे उसका कर्ज अदा करूं। मशवरा लेने आई। क्या करने आई? हाँ जी, आज जिस तरह आप अपनी मुश्किल के लिए, आप अपनी परेशानी के लिए, आप अपने दुख के लिए, आप अपनी मुसीबत के लिए खुदावंद के हुजूर आए हो मशवरा लेने के लिए कि ऐ खुदा मुझे बता मैं क्या करूं, मैं इस मुसीबत से कैसे रहाई पाऊं, मैं इस मुश्किल से कैसे रहाई पाऊं। ये भी बहन आप ही की तरह मर्द खुदा के पास आई है। अब आई क्यों है? क्योंकि पहली आयत हमें बताती है कि वो नबियों के बेटों में से किसी एक की बीवी थी। उसके खानदान में, उसके घराने में मालूम है कि खुदा
जब चाहे बड़े से बड़ा मौजज़ा कर सकता है। आमीन आमीन। आप भी जानते हैं, आपको भी मालूम है कि खुदा किसी वक्त भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन मशवरा लेकर अमल करने वाले नहीं हैं आप, मैं भी नहीं हूं। आई है और मशवरा लेने लगी कि क्या करूं। अब कुछ लोग मशवरा के साथ साथ ये भी उम्मीद रखते हैं कि खुदा का खादम उन्हें पूरा का पूरा रुपया पैसा दे देगा ताकि वो कर्ज अदा कर दे। नहीं, ऐसा नहीं होता। वो मर्द खुदा से बातें करने वाला है, और ये बहन जानती है कि ये खुदा से बातें करने वाला है, और वाज़िह कहती है कि मेरे लिए पूछ खुदा से कि अब मैं क्या करूं। अलीशा ने एक सवाल किया उससे कि तेरे पास क्या है, तेरे पास कुछ है? उसने कहा हां, मेरे पास एक प्याला तेल है, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। वो एक प्याला तेल उसके ईमान का इजहार है, उसके अमल का इजहार है कि हां एक प्याला तेल है, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। या इस बात पर जरा गौर कीजिएगा, आप सब बहनें भाई जरा गौर कीजिएगा कि जब आप खुदा के खादम के पास, मर्द खुदा के पास कुछ मशवरा लेने आते हैं तो जैसा वो बोले वैसा कर लीजिएगा, क्योंकि दैट टाइम उसने नहीं बोला, खुदा ने आपसे बात की है, खुदा आपसे बात कर रहा है। यहां किसी को कह देना कि एक हफ्ता लगातार दुआ करा लो, एडा केड़ा पाजी काम तो ही टाइम नहीं लगता है ना, मुश्किल है। मशवरा मानना मुश्किल है भाई। आप फिर इतवार के इतवार खुदा के हजूर आ जाओ, उस दिन तो छुट्टी नहीं होती जी, मुश्किल है। फिर जुमे को आ जाओ भी, उस दिन भी हाफ डे होता है जी, हम नहीं आ सकते, हमारे लिए आप ही दुआ कर दें तो खुदा नहीं, ऐसा नहीं है। समझने की कोशिश करें, ध्यान करें कि खुदा का कलाम, जो खुदा आपके साथ कलाम कर रहा है, उसमें कोई ना कोई बुनियादी राज है। अगर आपको इतवार के रोज खुदा ने कहा आओ, तो उसमें एक राज है, खुदा उस दिन आपके साथ बात करना चाह रहा है, खुदा ने आपको बुलाया है, खुदा ने आपसे बात की है। और यही बात ये बहन जब मर्द खुदा के पास आती है, मर्द खुदा से बात करती है, अपनी परेशानी का इजहार करती है, अपनी मुश्किल का इजहार करती है और पूछती है कि अब मैं क्या करूं, तो सिंपल बात है, मर्द खुदा जो खुदा का खादम है वो आपको मशवरा ही देगा ना कि हां आप कल आना, मैं खुदा से पूछ कर बताऊंगा कि आप क्या करो। उसने कहा मैं खुदा से पूछता हूं कि आपने क्या करना है, तुम्हारे पास क्या है। मर्द खुदा को बताने लगी, एक प्याला तेल के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बहुत गरीब हूं, मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, मेरे घर में पीने के लिए कुछ नहीं है, भूख है, मेरे घर में कुछ भी नहीं है। अब मशवरा सुनिएगा, मिसरा देखिएगा, खुदा के पाक और मुकद्दस कलाम में से जब कहा कि मेरे पास एक प्याला तेल के सिवा कुछ नहीं है, तो मर्द खुदा मशवरा देने लगा है, खुदा से बात करके खुदा की बात उसके गोशगवार करने लगा है, उसको बताने लगा। सुनो, लिखा है, तब उसने कहा, यानी अलीशा ने कहा उस बहन से, तब उसने कहा तू जा और बाहर से अपने सब हमसायों से बर्तन आरायत लेनी, उधार ले ले, वो बर्तन खाली हों और थोड़े बर्तन ना लेना, और थोड़े बर्तन ना लेना। फिर तो अपने बेटों को साथ लेकर अंदर जाना और पीछे से दरवाजा बंद कर लेना, और उन सब बर्तनों में तेल उंडेलना और जो भर जाए उसे उठाकर अलग रखना। मशवरा दिया। अब एक प्याला तेल है और मर्द खुदा मशवरा दे रहा है। जरा ध्यान कीजिएगा इस बात पर, गौर करना है अपने इस बात पर। आज हम ऐसे ईमान से बहुत कोसों दूर हैं, ऐसी बातों से हम बहुत दूर हैं, हमें मुश्किल लगता है। हां, मुश्किल टारगेट है, बात ही बड़ी मुश्किल की है। कर्ज का सर पर है, घर में भूख है। मैं आपको थोड़ा सा इस बात की तरफ आपको लाना चाह रहा हूं। घर में भूख है, कर्ज लेने वाला
दरवाजा पर है और कहकर गया कि अगर कर्ज अदा ना करोगी तो मैं तेरे बेटों को गुलाम बनाऊंगा। अब मशवरा सुन ले, तू जा अपनी गली मोहल्ले से बर्तन उधारे उठा और थोड़े ना लेना, पूरा मोहल्ला देखना, पूरे मोहल्ले से बर्तन उठा, बड़े बर्तन उठाना, और फिर क्या करना, अपने बच्चों को अपने, हाँ जी यहां जरा मुश्किल काम है, अपने बच्चों को अपने साथ लेना, बेटों को साथ लेना, और दरवाजा एक एक बात समझाई है। क्या करना, अपने बेटों को साथ लेना, गली मोहल्ले से बर्तन उधार लेना, अपने बेटों को साथ लेना, दरवाजा बंद कर लेना, उस प्याले तेल में से उंडेलना बर्तनों में, और जब भर जाए उसे उठाकर अलग कर लेना। अब वो क्या कहते हैं कि आया सा मशवरा लैन ली, अगो नवी गल मर्दे खुदा ने बता दी। अब इन बातों में राज होते हैं, जो खुदा का खादम आपको बोले ना कि ऐसा कर लो, उसमें राज है। खुदा पहले कुछ नहीं बताता। खुदा ने हमारे आबाओ अजदाद यानी इब्राहिम को भी पहले कुछ नहीं बताया, कहा उठ अपने नातेदारों को छोड़ और चल, वो चल पड़ा। इस बहन को भी ही मर्दे खुदा ने कहा जा पहले क्या कर, बर्तन उधारे ले। अब वो लोगों के दरवाजे नॉक करती होगी और कहती होगी बाजी वड्डा पतीला चाहिए, तू क्या करना है, हाले सवेरे तेरे दरवाजे आगे कर्जा ला है, तू की पकाना आज, है ना। शर्मिंदगी की बात है ना, लेकिन गौर नहीं किया इस बात पर। हम करते हैं, हम जो ईमानदार हैं हम इन बातों पर गौर करते हैं। दुनिया की आंखेगी, अलौकिकी कहेंगे, ये हमारी प्रॉब्लम बन चुकी हुई है कि जो खुदा कहता है उसको करने के लिए भी हम दुनिया की तरफ देखते हैं कि दुनिया क्या कहेगी। वो गई है, उसने गली मोहल्ले के लोगों से बर्तन उधारे लिए, यहां लिखा है, वाज़ह लिखा कि वो गई है और उसने ऐसा ही किया जैसा मर्दे खुदा ने उसको कहा था। पहला टारगेट क्या था उसका, बर्तन उधारे लेना है और थोड़े ना लेना। वो बर्तन उधारे इकट्ठे करने लग गई और लिए, अपने घर में जमा किए। फिर क्या किया, फिर उसने अपने बेटों को साथ लिया। अब अगर मेरे वर्गे बेटे होंगे तो कहना किसी अम्मा हिल गई हैं। हां ये अल्फाज हैं हमारे। आज अपने बच्चों को दुआ में अपने साथ मुतफिक करना दुनिया का सबसे बड़ा टारगेट है। आपके बच्चे आपके साथ मुतफिक नहीं होंगे। खुदा का खादम आपको कह रहा है घराना समेत दुआ करना, दरी बिछाना, अपने बच्चों को साथ बिठाना, दुआ करना, खुदा 10वें 12वें दिन आपके साथ भला हो जाएगा। नहीं हो सकता क्योंकि बेटे तो बैठ ही नहीं रहे, बेटियां दुआ में नहीं आ रही। मुश्किल टारगेट है, इस बहन के लिए भी मुश्किल टारगेट है। औलाद हर जमाना में मुश्किल टारगेट रहा है, हर जमाना में। वो बेटे हैं या बेटियां हैं, एक मां के लिए, एक बाप के लिए औलाद को अपने साथ मुतफिक करना एक मुश्किल टारगेट रहा है। और इस बहन ने उस मुश्किल टारगेट को भी अचीव किया है। अपने बेटों को साथ लिया उसने। बेटों ने कुछ नहीं कहा, बेटों की जरूरत ना हुई कि वो अपनी मां से यह बात कहते कि मां एक प्याला तेल और पूरे महल्ले दे भांडे। बहुत मुश्किल बात है, इंतहा से ज्यादा मुश्किल बात है। तो भी इस बहन ने इस टारगेट को भी अचीव किया है, अपने बच्चों को अपने साथ लिया। और फिर यह बात भी नहीं भूली कि कुंडी लगानी है, यह बात भी नहीं भूली। उसने दरवाजा बंद किया, अपने बच्चों को साथ लिया, बर्तन उधारे लिए और लिखा है कि वो उस प्याले तेल में से बर्तनों में उंडेलने लगी, बगैर कुछ सोचे, बगैर शक किए और बगैर कुछ सवाल किए उस प्याले तेल में से उंडेलने लगी। है ना मुश्किल बात। उस दौर में भी मुश्किल थी, आज भी मुश्किल है।
आज भी आप फितरत से हटकर किसी को कोई बात बोलोगे ना, वो आपसे सवाल करेगा, अरे इंज तो नहीं होता। लेकिन याद रखिएगा कि मेरे खुदा में सब कुछ मुमकिन है। आमीन, आमीन। अगर हम रब में हैं, अगर हम खुदा में हैं, उसके कलाम पर अमल करने वाले हैं, तो याद रखिएगा दुनिया इतना सोचती है और कलाम पर अमल करने वाला इतना सोचता है कि होगा जरूर। अब ये बहन कलाम पर अमल करने वाली है, बच्चों को भी मुतफिक कर लिया और बच्चों को भी अपने साथ खड़ा कर लिया और कहने लगी कि इस बात पर ईमान रखो कि जो मर्द खुदा ने कहा है वो होगा जरूर। क्योंकि मर्द खुदा खुद से बात नहीं करता, वो खुदा से लेकर बात करता है। हालेलुया, आमीन। ये उसकी बातें नहीं है, ये खुदा की बातें हैं। खुदा ने कहा है कि प्याला तेल में से ओंडेलना, तो हम ओंडेलेंगे, हम थोड़े बर्तन नहीं लेंगे, नहीं लिए। और जब हम इस पूरे पैराग्राफ पर गौर करते हैं, ध्यान करते हैं, इस वाक्य पर गौर करते हैं, तो लिखा है कि जैसे उस बहन ने उस प्याले तेल को ओंडेला तो तेल आना शुरू हो गया। एक बर्तन भरा, बेटे ने उठाकर लग किया, दूसरा भरा, बेटे ने उठाकर लग किया, तीसरा भरा, बच्चों ने उठाकर लग किया, चौथा भरा, बच्चों ने उठाकर लग किया, पांचवा भरा, बच्चों ने उठाकर लग किया। बर्तन भरते गए, बच्चे उठाकर अलग करते गए, अलग करते गए। फिर मां ने आवाज दी, एक और बर्तन लाओ, तो बच्चों ने कहा अब बर्तन नहीं रहे। आमीन। फिर बच्चों ने कहा कि अब बर्तन नहीं रहे। याद रखिएगा कि जब आप कलाम के साथ मुतफिक हो जाते हैं, जब मर्द खुदा की बात के साथ मुतफिक हो जाते हैं, तो आपके घर में बरकतों से बर्तन भर जाएंगे, बरकतें खत्म नहीं होंगी। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, कलाम पर अमल करने वाले बनो, शक करने वाले नहीं। जो मर्द खुदा आपसे बात करे उस पर ध्यान करो। मैं अक्सर लोगों से बात करता हूं, मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि अब आप इस चर्च में आ गए हो, अब आप गरीब नहीं रहोगे। अब आपने खुदावंद को ज्वाइन कर लिया है, अब आप गरीब नहीं रहोगे। अब आपके घर में किसी बात की कमी नहीं रहेगी। अक्सर जरूरतमंद जो आते हैं, मैं उनको जरूरत के तौर पर जो हदिया देता हूं, वो देकर मैं ये बात जरूर करता हूं, ये खुदा का पैसा है जो तेरे घर में जा रहा है, ये खुदा का पैसा जो आपके घर में जा रहा है, और इससे इतनी बरकत आएगी कि आपके घर में रखने के लिए जगह नहीं बचेगी। आमीन। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा के कलाम पर अमल करने की कोशिश करें। इस बहन ने अमल किया, अपनी जिंदगी में मौजज़ा देखा, और फिर उससे बड़ी बात, जब मौजज़ा हुआ, बर्तन भर गए, खुदा की शुक्रगुजारी की, और फिर मर्द खुदा के पास वापस चलेगी। साढ़े वांगू नहीं कीता, चल हुण फिर कदी चले जावांगे। हालत हो गई है गल, खुदा ने सुन तो ली है, मौजज़ा तो हो गया है, और जब वक्त मिलेगा फिर चले जाएंगे। उसने ऐसा नहीं किया, बर्तन अलग रखे, अपने बच्चों को कहा यहां ठहरे रहो, अभी कुछ ना करना, मैं मर्द खुदा के पास वापस जाती हूं। आगे की करना है ना? अब और आगे क्या करना है? ऐसी ताबेदारी, ऐसी फर्मा बरदारी खुदा मुझसे और आपसे चाहता है कि कलाम को सुनकर जब आप उस पर अमल करते हो, फिर अगली बात भी पूछ लो, आगे क्या करना है। मर्द खुदा के पास आई है और कहने लगी है कि मेरे घर में मौजज़ा हुआ है। आमीन। एक प्याला तेल से सारे बर्तन भर गए, अगर और भी होते तो वो भी भर जाते। आमीन। तो मर्द खुदा ने क्या कहा? जा इस तेल को बेच, अपना कर्ज अदा कर, और जो बाकी बचे उससे क्या करना, तू और तेरे बेटे अपनी जिंदगी बसर करना। आमीन। अमीर हो गए हैं वो फिर। आमीन। अब वो अमीर हो गए हैं, कर्ज भी उतर गया है और बाकी भी बच गया है, और बरकतों से घर भी भर गया है। क्यों? अमल करने। शाबाश, अमल करने से। जी भैया, क्यों? अमल करने से। और आज मैं खुदा का खादम होते हुए आपको मशवरा देता हूं कि जो खुदा कहे उस पर अमल करो, बरकतों से बर्तन भर जाएंगे। आमीन। और बरकतों का ऐसा फ्लो आपकी जिंदगी में आएगा कि आपके पास रखने के लिए जगह नहीं होगी। आप कहेंगे ये एक्स्ट्रा है मेरे पास, मैं किसी और को देता हूं या देती हूं। आमीन। इसलिए गौर करें खुदा आपसे क्या बात कर रहा है, गौर करें खुदा आपसे क्या गुफ्तगू कर रहा है। जब आप खुदा के खादम के पास आते हो ना, अपना कोई भी मसला डिस्कस करते हो, उसके बाद खुदा के खादम की बातों पर गौर किया करें कि खुदा का खादम कह क्या रहा है।
اس کی باتیں کیا ہیں, وہ کہنا کیا چاہتا ہے, خدا سے لے کر ہم سے بات کیا کر رہا ہے. اگر خدا آپ سے بات کر رہا ہے تو اس پر عمل ڈٹ جائیں اس بات پر کہ نہیں ایسا ضرور ہوگا, کیونکہ خدا کے خادم مرد خدا نے خدا کے مذبح پر بیٹھ کر یہ بات کی ہے کہ ہوگا ضرور. آمین. یہ ہوگا ضرور, اور ہوتا ہے, اور ایسا ہوتا ہے, ہم نے دیکھا ہے ایسا ہوتا ہے. اور خدا جب بات کرتا ہے تو کچھ ہی دنوں کے بعد یا کچھ ہی مہینوں کے بعد ویسا ہو جاتا ہے. آمین آمین. اس لیے خدا کے کلام پر عمل کرنے والے بنو, نہ محض سننے والے. اگر وہ خدا کے بندہ مرد خدا کے پاس آتی اپنا رونا پٹنا کر دی کہ کی کرا میں تے جا کے انج نہ کر دی جدہ مرد خدا نے آکھیا سی, تے کیا خوشحال ہو سکتی سی؟ نہیں, وہ خوشحال نہیں ہو سکتی تھی. آج میں اور میرا خدا, میں اور میرا رب آپ سے التماس کرتے ہیں کہ جیسا کہا جائے ویسا کرو تو برکت پاؤ گے. جیسا کہا جائے اپنی زندگی میں اس پر عمل کرو تو برکت پاؤ گے. خدا کے کلام کو محض سننے والے نہ بنو, محض پڑھنے والے نہ بنو, بلکہ اس پر عمل کرنے والے بنو. آمین. اور عمل سے خالی ایماندار ٹھنٹھناتا پیتل اور جنجناتی جانچ ہے. آمین آمین. تو اس لیے میرے عزیزو اس بات پر دھیان کرو اور غور کرو کہ خدا آپ سے کیا بات کرتا ہے. آئیں حاصل کلام کی جانب آتے ہیں. ویسا دیکھیے گا خدا کے پاک اور مقدس کلام میں سے میرے ہر میسج کا حاصل کلام عمل کرنے والے بنو گے تو خدا آپ سے بات کرے گا, اور عمل کرنے والا حاصل کلام کے مطابق ایسا ہونا چاہیے. لکھا ہے جو اچھی زمین پر بوئے گے حاصل کلام, مرکز کی انجیل 4 باب اور اس کی 20ویں آیت. مرکز کی انجیل 4 باب اور اس کی 20ویں آیت حاصل کلام. اور جو اچھی زمین میں بوئے گے یہ وہ ہیں جو کلام کو سنتے اور قبول کرتے ہیں اور پھل لاتے ہیں, کوئی 30 گنا, کوئی 60 گنا, کوئی 100 گنا. اس لسٹ میں آنا ہے ہم نے, اس لسٹ میں آنا ہے ہم نے. کم از کم کٹ تو کٹ بھی 30 گنا, پھر اس کے بعد 60 گنا. 100 گنا والی بات تو پھر بہت اوپر ہے, وہ تو ہم سے ہو نہیں پائے گی. لیکن ہاں اگر ہم کوشش کریں گے تو ہم 100 گنا تک بھی پہنچ سکتے ہیں. ہاللیلویا ہاللیلویا. سو کلام پر عمل کرنے والے بنو, نہ محض سننے والے. کوشش کریں کہ عمل سے خالی نہ ہو, عمل آپ کی زندگی میں ہو. خدا آپ کو ایسا کرنے کی توفیق دے. آمین. جوش نال جی, اور جوش کے ساتھ آمین آمین. تو ہم نے اس بہن کی طرح بننا ہے. یہاں تک سمجھ آئی؟ کتنوں کو سمجھ آئی ہے؟ تو میں اگلے اتوار پوچھ لینا جی, تو واری واری اٹھا کے پوچھنا کہ یہاں کیا تھا. آمین. جب تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے تو کیوں؟ یہ سوال ہے. آج اس مبارک صبح میں میرے آقا میرے خدا یسوع مسیح کا سوال میں آپ کے لیے چھوڑ دیتا ہوں کہ جب تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے تو کیوں مجھے خداوند خداوند کہتے ہو؟ عمل کرنے والا راست باز ٹھہرے گا, عمل کرنے والا خوشحال ہوگا, عمل کرنے والا بحال ہوگا, عمل کرنے والا اپنی زندگی میں برکتوں کو, بخششوں کو, سلامتی کو حاصل کرے گا, اور عمل کرنے والا سرفراز ہوگا. آمین آمین. خداوند آپ کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اپنے سروں کو جھکائیں, آنکھیں بند کریں. میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے لیے دعا کروں. آپ ضرورت مند نہ رہیں, میں یہ دعا کرنا چاہتا ہوں. میں یہ دعا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دینے والے نہیں اور لینے والے نہیں بلکہ دینے والے بنے. میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں کہ خدا آپ کی زندگی میں کثرت کے ساتھ کام کرے, آپ عمل کرنے والے بنے. ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت مشکل ہے, ایسا کرنا بہت مشکل ہے. ایک یاد رکھیے گا کہ اگر آپ ان مراحل سے گزر گئے تو خوشحالی آپ کا مقدر ہوگی, بحالی آپ کا مقدر ہوگی.
आपकी जिंदगी में भी किसी बात की कमी ना होगी, क्योंकि खुदावन की बात आपने सुन ली, मान ली, उस पर अमल किया है। आमीन। आए हम दुआ करें। जलाल के बादशाह, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं तेरे बेटे अपने खुदाम यीशु के लिए, खुदामदाज के कलाम के लिए, इस बहन के लिए, इसके बेटों के लिए जो हमारे लिए रोल मॉडल हैं। खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। मेरे घराने को भी तौफीक बख्श कि मैं अपने बेटों के साथ मुत्फिक होकर, बेटी के साथ मुत्फिक होकर खुदा तेरे मसबा पर आऊं। इस जमायत के लिए भी खुदा मैं दुआ करता हूं कि इनके बच्चों को भी तौफीक दे खुदा, कि ये भी इस बहन के बेटों और बेटियों की तरह खुदा मुत्फिक हो जाएं और ये घराने बरकत पाए और तेरे दिए हुए मशवरा पर अमल करने वाले हो। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्स के नाम में आमीन। सब मिलकर बोलेगा आमीन। सो मेरे अजीजों, इबादत का दूसरा हिस्सा ये शायरबानी का है। हम उसकी जानिब बढ़ते हैं। सर को झुकाएंगे, आंखें बंद करेंगे और जो इस मेज पर अपना हाथ डालना चाहते हैं वो घुटनों के बल हों, दुआ में लग जाएं, ताकि खुदा का कलाम जो आपने सुना है वो कहीं 30 गुना खुदा का कलाम जो आपने सुना है वो आपकी जिंदगी में कसरत के साथ काम करे। खुदा का कलाम आपको बहाल करे, आपको खुशहाल करे। खुदावंद का जो मेज लगने वाला है, इस मेज पर आपकी बरकत, आपकी बख्शिश हो। आइए हम दुआ करें। मेहरबान खुदा, इस चर्च के लिए खुदा जो तेरे हजूर में सरनगू हैं, इन बेटों और बेटियों के लिए खुदा जो तेरे हजूर में सरनगू हैं, तेरी बरकत चाहते हैं खुदा। और जब ये तेरे मेज पर खुदा रोटी में से तोड़े तो खुदा ये रोटी ना हो बल्कि तेरा बदन हो। जिन बदनों में हम दाखिल हो खुदा पाक, खुदा ये शीरा शीरा ना है बल्कि खुदा उन तेरा लहू बने और तेरा लहू बनकर खुदा इन बदनों में सर्कुलेट करे और ये जिंदगी पाए और इनमें से हमेशा की जिंदगी की नदियां जारी हो। है खुदावन, इन बच्चों के साथ हो, इनको अपने हजूर में याद फरमा। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्स के नाम में आमीन। खुदा यीशु, जिस रात वो पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा ये मेरा बदन है जो बतेरों के गुनाहों की माफी के वास्ते तोड़ा जाएगा। रोटी के बाद उसने महका प्याला भी लिया और शुक्र करके अपने शागिर्दों को दिया और कहा इसमें से पियो, ये नए आहद में मेरा खून है जो बतेरों के गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाएगा। जब कभी तुम इस रोटी में से लेते और उस प्याले में से पीते तो मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। आमीन। खुदा उनका मेज लग चुका है। पहले भाई आएंगे और इस मेज पर अपना हाथ डालेंगे। यहां से बहनों से गुजारिश है थोड़ा सा रास्ता छोड़ दें ताकि भाई आसानी के साथ जो है वो वापस लौट सकें। बेहद यीशु तेरा प्यार
ਭੁਲਾਇਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬੇਹੱਦ ਯਿਸੂ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ, ਭੁੱਲਿਆ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਮ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ, ਕਦੀ ਭੁੱਲਿਆ ਵੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬੇਹੱਦ ਯਿਸੂ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ, ਭੁੱਲਿਆ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਮ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ, ਕਦੀ ਭੁੱਲਿਆ ਵੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਐਸੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀਆਂ, ਲਾਨਤਾਂ ਮੁਕਾਈਆਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਐਸੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀਆਂ, ਲਾਨਤਾਂ ਮੁਕਾਈਆਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਯਿਸੂ ਜਿਹਾ ਯਾਰ, ਭੁੱਲਿਆ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਯਿਸੂ ਜਿਹਾ ਯਾਰ, ਭੁੱਲਿਆ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬੇਹੱਦ ਯਿਸੂ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ, ਭੁੱਲਿਆ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਮ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ, ਕਦੀ ਗਿਣਿਆ ਵੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਮ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ, ਭੁੱਲਿਆ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵਫਾਵਾਂ ਬੇਵਫਾਈਆਂ ਬਦਲੇ, ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਰੁਸਵਾਈਆਂ ਬਦਲੇ, ਕੀਤੀਆਂ ਵਫਾਵਾਂ ਬੇਵਫਾਈਆਂ ਬਦਲੇ, ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਰੁਸਵਾਈਆਂ ਬਦਲੇ, ਕੀਤੀਆਂ ਵਫਾਵਾਂ ਹਰ ਬਾਰ, ਭੁੱਲਿਆ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੀਤੀਆਂ ਵਫਾਵਾਂ ਹਰ ਬਾਰ, ਭੁੱਲਿਆ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਮ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ, ਭੁੱਲਿਆ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬੇਹੱਦ ਯਿਸੂ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ, ਭੁੱਲਿਆ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਮ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ, ਕਦੀ ਗਿਣਿਆ ਵੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੁਖ ਦਿੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮੇਰੇ ਜਰ ਕੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਮੈਂ ਪਾਈ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ, ਸੁਖ ਦਿੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮੇਰੇ ਜਰ ਕੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਮੈਂ ਪਾਈ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿੰਦ ਦਿੱਤੀ ਵਾਰ, ਭੁੱਲਿਆ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿੰਦ ਦਿੱਤੀ ਵਾਰ, ਭੁੱਲਿਆ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਮ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ, ਕਦੀ ਗਿਣਿਆ ਵੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬੇਹੱਦ ਯਿਸੂ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ, ਭੁੱਲਿਆ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ,
मेरे ते करम बेशुमार भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा ऐसियां निभाइयां मेरे नाल यारियां लानतां मुकाइयां मेरे उत्तों सारियां ऐसियां निभाइयां मेरे नाल यारियां लानतां मुकाइयां मेरे उत्तों सारियां जिंदगी च यसु जिहा यार भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा जिंदगी च यसु जिहा यार भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा बेहद यसु तेरा प्यार भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा मेरे ते करम बेशुमार भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा वफावा बेवफाइयां बदले इज्जतां वधाइयां रुसवाइयां बदले कीतियां वफावा बेवफाइयां बदले इज्जतां वधाइयां रुसवाइयां बदले कीतियां वफावा हर बार भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा कीतियां वफावा हर बार भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा मेरे ते करम बेशुमार भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा बेहद यसु तेरा प्यार भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा